Hello everyone, welcome. I'm waiting for everyone to join. Welcome everyone. How are you? Hope you all are doing good and you all are at home. Welcome everyone. Good evening guys. How are you all? I'm good. Okay, so hi everyone, good evening. I'm Chef Paras Kapoor from Crave Desi by Chef Paras Kapoor. I'm the owner and founder of Crave Desi by Chef Paras Kapoor, and I'm a professional chef. I've done my culinary course from Manipal University, Karnataka, and I've trained in ITC Maurya, ITC Grand Bharat, Crown Plaza, Areli Restaurant, and I've done my job in Gastronomica Restaurant, South Delhi. Then now I'm a head chef of Crave Desi by Chef Paras Kapoor, and it's a delivery kitchen in East Delhi. If you are in East Delhi, you can order from Zomato, Swiggy till midnight 4 a.m. And I do small caterings like birthday parties, kitty parties, house parties, or any events or any personal orders. And it's between like 15 to 80 people. I manage that, and I give professional chefs cooking classes also. If anybody wants to learn professional cuisine, any regional cuisine, so I give that also. And so first of all, I would like to thank Amul for this amazing opportunity, and so that I can share my recipe. So today we are making gratinated Afghani Malai Chap, and I hope you all like the video and you like the recipe, and do make it at home. It's really very simple recipe. You can easily make it at home. So let's start the recipe. So first of all, we are using this chap. So chap is basically it's a protein, and it is made of soybeans and soy granules and refined flour. So first of all, we will make the marinade of malai chap. This is hung curd. So we are using Amul curd, and the ingredients and yeah, so I've added 2 tablespoons of hung curd, 2 tablespoons of cashew paste. Now I'm adding 3 tablespoons of cream, Amul cream. Now I'm adding little chopped green chilies just to give a kick. And now some freshly ground black pepper. It gives a really nice flavor. अब हम डालेंगे इसमें salt 1 teaspoon. अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से. बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एंड आप आराम से इसको घर पे बना सकते हो. चाप इजीली मिल सकती है आपके आसपास. जो डेयरीज होती हैं वहाँ पे जो पनीर और दही बेचते हैं वो चाप भी रखते हैं. सो सिर्फ चाप, हंग कर्ड, दही को आप स्ट्रेनर में डाल के लाइक 4 to 5 आवर्स के लिए छोड़ सकते हैं, या मसलिन क्लॉथ में डाल के उसको छोड़ सकते हैं. देन यूज़ इट. और कैशू पेस्ट बनाने के लिए आप बॉइलिंग वाटर में कैशूज डाल के अराउंड 5 मिनट्स तक कुक करें. देन उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लें. कैशू पेस्ट भी बहुत सिंपल है. देन इसमें बस ग्रीन चिलीज डालनी है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड अमूल क्रीम. सो आवर मैरिनेड इज रेडी. It looks really good. You can see it's very thick. That's what we want. Now we'll keep it in fridge for like 5 to 10 minutes so that soya chap and marinade sticks together very easily. Now I'll just turn on the griddle, and I've turned on the oven also. मैंने ओवन ऑन कर रखा है और ग्रिडल भी. सो एक्चुअली चाप तंदूर में ग्रिल होती है. तंदूर में आप बेक कर सकते हैं या ओवन में बेक कर सकते हैं उसको.
बट अगर आपके पास तंदूर नहीं है, आप ओवन नहीं है, आप ग्रिल भी कर सकते हो इसको। और अगर आपके पास ग्रिलर भी नहीं है, अगर आप पैन में यूज़ करना चाहें तो पैन में यूज़ नॉन स्टिक पैन, क्योंकि नॉन स्टिक से स्वेच आप चिपकेगी नहीं। अगर आप नॉर्मल स्टील का पैन या एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो वो चिपक जाएगी। सो यूज़ नॉन स्टिक पैन, ग्रिडल और एनीथिंग। सो नाउ अब हम बनाएंगे चटनी, जो कि मलाई चाप के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। सो अब हम मिक्सी में ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, धनिया है फ्रेश एकदम। इसमें हम डालेंगे थोड़ी ग्रीन चिलीज, एक अच्छा सा स्पाइसी किक देने के लिए 2 ग्रीन चिलीज डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे हम जिंजर, अदरक छिली हुई। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसको। अगर आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन भुना जीरा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून जीरा है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, हाफ टी स्पून। और इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, जिससे कि अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा चटनी हमारी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, ज़्यादा रनी नहीं चाहिए, थोड़ी थिक चाहिए चटनी हमें। और अब हम इसको पीस देंगे। सो ग्रैटिनेटेड, बेसिकली gratin is a culinary technique in which an ingredient is topped with buttered crumbs or any grated cheese, और उसको हम बेक कर देते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रैटिन। हमारा पैन गेटिंग हॉट, अच्छे से गर्म हो रहा है। और हमें गर्म हीट पे ही पकाना है, क्योंकि अगर हम धीरे हीट पे पकाएंगे तो वो चिपकने के थोड़े चांसेस होते हैं। गर्म हीट पे पकाएंगे तो उस पर ग्रिल मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे चाप के। तो अच्छे से पैन को हीट करें एंड देन यूज इट। नाउ our chutney is about to ready। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चटनी में थोड़ा सा हंगर। ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। यू कैन सी द कलर, इट्स रियली अमेजिंग। इसको एक बोल में डालेंगे हम। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसी लग रही है आपको रेसिपी। हम बना रहे हैं अफगानी मलाई चाप। काम नहीं कर रहा। सो ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हंग, जो कि बहुत ही सुंदर कलर देगा इस चटनी को। आप इसमें नॉर्मल कर्ड भी डाल सकते हो अगर हंग नहीं है आपके पास ज़्यादा। सो नॉर्मल कर्ड डाल सकते हो। और इसको मिक्स करेंगे। यू सी द कलर, हाउ इट्स चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रीन कलर टू ब्राइट ग्रीन कलर। और ये वो चटनी है जो यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे इजीली मिल जाती है सिरका प्याज के साथ। और ये हर नॉर्थ इंडियन की फेवरेट है, स्पेशली मेरी भी। अच्छे से मिक्स अप कर लें इसको। नाउ यू कैन सी द कलर। और इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा किक के लिए चाट, क्योंकि हम इंडियंस को चटपटा बहुत पसंद होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस को। सो हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। चटनी को थोड़ा थिक रखना है। ओके, सो कुछ लोग बोल रहे हैं कि शेफ वापस रेसिपी बोल दीजिए, तो हम एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सो हम बना रहे हैं ग्रैटिनेटेड अफगानी मलाई चाप। सो इसमें हमने चाप ली है, जिसको मैंने बॉईल किया हुआ है 5 मिनट के लिए। देन उसमें मैंने डाले हंकर। दही को आप स्ट्रेनर में डाल के या मसलिन क्लॉथ में डाल के 5-6 घंटे के लिए बाहर छोड़ सकते हैं। देन वो हंकट बन जाता है। और इसमें डाला मैंने कैश्यू पेस्ट।
कैशू पेस्ट बेसिकली गर्म पानी में आप थोड़े काजू डाल के थोड़ा सा पानी उसको एवापोरेट होने दें। जब बिल्कुल पानी एवापोरेट हो जाए देन उसको ब्लेंड कर दीजिए। देन कैशू पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो 2 टेबलस्पून हंकट, 2 टेबलस्पून कैशू पेस्ट, 3 टेबलस्पून अमूल क्रीम और ब्लैक पेपर डाले मैंने फ्रेशली ग्राउंड, सॉल्ट डाला है और ग्रीन चिलीज़, और इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सोया चाप से वो स्टिक हो जाए। डालिए 2 और सॉल्ट एंड हल्का सा किक के लिए चाट मसाला और जिंजर। सो ये हमारी चटनी भी रेडी है। अब हम अपनी सोया चाप को ग्रिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। पैन हमारा बिल्कुल हॉट होना चाहिए जिससे अच्छे से ग्रिल मार्क्स आएंगे। सो अब मैं इसमें सोया चाप डालूंगा। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी तो बहुत ही सिजलिंग साउंड अच्छी सी यू कैन हियर। और ये मैरिनेट मैंने थोड़ा सा बचा लिया है यहाँ पे, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। यस, हम सोया चाप बना रहे हैं और मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ अपना। तो डू वी बॉईल चाप फर्स्ट? यस, आप चाप को बॉईल कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं। और अदर सब्स्टिट्यूट, चाप का सब्स्टिट्यूट इज चिकन और यू कैन यूज़ पनीर। बेसिकली चाप इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर चिकन। जो लोग वेजिटेरियंस हैं और जो चिकन नहीं खाते और जिन्हें लाइक थोड़ा फील होता है कि हाँ मुझे चिकन चाहिए लेकिन मुझे चिकन खाना नहीं है, सो आप सोया चाप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मीठी सा टेक्सचर होता है इसका। रेसिपी पोस्ट कर दूंगा मैं इस पे, अमूल के पेज पे रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। गैस हमारी मीडियम हाई होनी चाहिए, तो फ्लेम हाई होनी चाहिए जिससे कि ग्रिल मार्क्स अच्छे आते हैं। एंड अवन हमारा ऑन है इधर। हाँ, मैं वही चाप यूज़ कर रहा हूँ जो आइसक्रीम स्टिक से लिपटी हुई मिलती है हमें। सो इस स्टिक पे लिपटी हुई होती है मलाई चाप और वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट में फ्रोज़न चाप भी मिलती है, उसको लाइक पहले आप फ्रिज में निकाल सकते हो या देन बॉईल करके देन यूज़ कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो आपके, आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे। सो चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए थे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। धनिया, थोड़ा सा ग्रीन चिली, जिंजर और सॉल्ट, रोस्टेड क्यूमिन, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन हल्का सा चाट मसाला, आप नींबू भी डाल सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें दही डाला है, हंकर्ड नहीं तो आप नॉर्मल कर्ड यूज़ कर सकते हैं। Okay, thank you so much for the lovely comments. You can see the chop is getting cooked और इसको हम टर्न करेंगे। You can see the golden color looking so amazing. सोया चाप अच्छे से पक गया। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे, अमूल बटर, जिससे कि चाप में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा बटर का। मीडियम हाई फ्लेम पे कुक हो रही है चाप, जिससे कि ये मार्क्स आए हैं और ऐसे ही हमें चाप चाहिए। अगर आपके पास तंदूर हो या अवन हो तो आप उसमें बेक कर सकते हो, या अवन तंदूर में आप
सीख में डाल के इसको कुक कर सकते हो। यस, मेरा लाइक आई हैव अ पेज ऑन फेसबुक, शेफ़ फारस कपूर के नाम से मेरा पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मेरा ब्रांड है क्रेव देसी बाय शेफ़ फारस कपूर, जो कि फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, शेफ़ फारस कपूर एंड क्रेव देसी, यू कैन फॉलो ओवर देयर। एंड अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी सीखनी है जो कि ईजिली घर पे बनती है, देन मैं यूट्यूब पे भी रेसिपीज़ बनाता हूँ। शेफ़ फारस कपूर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और आप वहाँ से ईजिली देख सकते हो रेसिपीज़। ओके, सो नाउ अब हम अनियंस को स्लाइस करेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे आगे। सो हमें बहुत फाइन अनियन स्लाइसेस चाहिए। हमने स्लाइस कर लिया। अब हम चाप इज ऑलमोस्ट डन। इसको थोड़ा सा साइड से भी पकाएंगे हम। तो हमारी चाप इज़ ऑलमोस्ट डन। अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो आप क्रेव देसी से ऑर्डर कर सकते हैं। वी आर ऑन जोमेटो, स्विगी, द यमी आइडिया ऐप एंड फूडली पे भी हम ज्वाइन करने वाले हैं। सो वी विल बी ऑन 4 प्लेटफॉर्म्स एंड दोपहर को 1 बजे स्टार्ट होता है क्रेव देसी एंड सुबह के 4 बजे तक यू कैन ऑर्डर। मिडनाइट क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हैं हम। एंड मेरे मेन्यू में यूजुअली है फ्यूजन इंडियन एंड फ्यूजन क्वांटी फूड। So it has basically chicken shawarma poppers, butter chicken seekh kebab, dishes like that. So what I sell is tacos, burgers, rolls and customized rolls. और starters हैं which is known as देसी मंचीज़, shakes हैं जिसमें मेरा काफ़ी पॉपुलर शेक है which is एल्पेनलीबे टॉफ़ी शेक, जो हम बचपन में एल्पेनलीबे टॉफ़ी खाते थे उसका शेक है। और होली पे जो ठंडाई मिलती है उसका शेक है। एंड आई हैव ब्राउनी इन डेजर्ट्स, डबल डेकर ओरियो ब्राउनी। So things like that, you can check it on, so check the menu on Zomato and Swiggy. Or then I do caterings also. अगर आपको like आपके घर पे कोई occasion हो, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, हाउस पार्टी और एनी इवेंट या कोई भी स्पेशलाइज ऑर्डर हो, so उसके लिए हम फूड केटरिंग्स करते हैं। मिनिमम 15 लोगों की एंड मैक्सिमम 80 पीपल की फूड केटरिंग्स होती हैं। जैसे कि अभी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और हमें निकलना भी नहीं चाहिए, तो घर पे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, सो उनमें केटरिंग्स होती हैं, वो सब मैं करता हूँ। और कुकिंग क्लासेस भी देता हूँ मैं, किसी को बाहर का खाना सीखना होगा, स्पेनिश, मैक्सिकन, फ्रेंच, इंडियन, चाइनीज़, वो सब सिखाता हूँ मैं। सो यू कैन ईजिली बुक अ शेफ and I'll come at your home in East Delhi and cook for you, cook for your family. So now अच्छा आप ready, अब इसको हम कट करेंगे। मैं अपने हाथ धो लेता हूँ। तो चाप का बहुत ही अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन, और ऐसा ही हमें चाहिए। और इसको हम कट करेंगे, हल्के से मोटे मोटे चंक्स चाहिए हमें चाप के।
बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इजीली इसको घर पे बना सकते हो। और लॉकडाउन में तो आजकल हर कोई घर पे ही खाना बना रहा है और अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं। देन डू ट्राई दिस रेसिपी, इट्स रियली सिंपल। अब हम इस चाप को, ये जो मैरिनेट बचा हुआ था, इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे अमूल क्रीम, थ्री टेबल स्पून ऑफ अमूल क्रीम। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ अमूल बटर। अमूल बटर की बात ही कुछ अलग है, बाकी मैंने काफ़ी बटर यूज़ किए बट वो बात नहीं आई जो अमूल के बटर में। आप किसी भी चीज़ पे डालिए, पराठे पे या एनी ग्रेवी, कोई भी इंडियन ग्रेवी पे डाल सकते हैं, किसी भी स्टार्टर में डालें, फ्लेवर एकदम इन्हांस कर देती है। सो अमूल बटर इज़ रियली अमेजिंग, डू यूज़ दिस ओनली। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, और हम नॉर्थ इंडियंस का फेवरेट चाट मसाला। सो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दिस इज़ लुकिंग सो एपेटाइजिंग। हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए इसका, थोड़ा सा क्रीमी होना चाहिए, अगर ड्राई रहेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। सो इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी डालेंगे। ये गए इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसका आता है मेन पार्ट जो कि हम ग्रेटिनेट करेंगे। सो ग्रेटिनेट इज बेसिकली टू कुक एनीथिंग विद अ कवरिंग ऑफ बटर्ड क्रम्स और या एनी ग्रेटेड चीज़, उसको हम क्रम से कोट करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, देन उसको ओवन में बेक करते हैं। सो उसको कहते हैं ग्रेटिनेट। तो अब हम वो करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, इसके अंदर मैंने एक मोल्ड रख दिया है और मोल्ड के अंदर हम थोड़ा सा अमूल बटर लगा लेंगे जिससे कि चिपके ना, एंड थोड़ा सा नीचे भी प्लेट पे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मलाई चाप। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर पे। और डू लेट मी नो, आप शेफ़ फारस कपूर पेज पे जाके बता सकते हैं मेरे को, मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, या क्रेव देसी बाय शेफ़ फारस कपूर को फॉलो करके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बता सकते हैं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेफ़ फारस कपूर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। सो ये हमने यहाँ पे मलाई चाप डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे अमूल चीज़। बनाता हूँ और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, मैं शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों के साथ, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस को यूजुअली चटपटा और क्रीमी ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। सो ये हमने यहाँ पे अमूल चीज़ डाल दी है। अब हम इसको करेंगे ग्रेटिनेट। सो ओवन मेरा एकदम गर्म है, इसको मैंने 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाला हुआ है और इसको हम बेक करेंगे। It will hardly take 4 to 5 minutes. So इतने मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेज लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपसे बाद में। अभी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ये वीडियो खत्म हो, शेफ़ फारस कपूर और क्रेव देसी बाय शेफ़ फारस कपूर, 2 पेजेस हैं मेरे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, एंड यूट्यूब पे शेफ़ फारस कपूर। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू रघुवीर हांडा, थैंक यू अनीता दत्ता, थैंक यू पंपा घोष, थैंक यू ममता नागरे, थैंक यू नीता, थैंक यू रिंकू। Yes, it is a kind of healthy recipe क्योंकि इसमें सोया
जो सोया चाप होती है, वो बनता है हमारे सोयाबीन से। वाइट बीन्स होती हैं, उसको सोक करते हैं, देन उसके बाद उसको पीस लेते हैं मिक्सी में, और इसमें यूज़ करते हैं सोया ग्रैन्यूल्स। सोया ग्रैन्यूल्स नहीं है तो आप सोया चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। उसको आप सोक करके देन उसको आप ब्लेंड कर सकते हैं थोड़े पानी के साथ, तो थिक एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। देन दोनों मिक्सचर को मिला के उसमें मैदा डालना है। तो मैं आपको रेशो बता देता हूँ। रेशो होता है इसका 1 कप सोयाबीन, 1 कप सोया ग्रैन्यूल्स एंड 3/4 कप ऑफ मैदा। इसको आप मिक्स करेंगे एंड थोड़ा सॉल्ट और हल्का सा पानी के साथ इसको एक डो बना लेंगे। डो इसका थोड़ा फर्म होता है, ना थोड़ा सॉफ्ट ना हार्ड, फर्म। एंड इसका जब डो बनेगा उसके बाद इसको रोल करते हैं, देन काटते हैं इसको स्ट्रिप्स में मोटे मोटे, एंड देन ऐसे आइसक्रीम स्टिक्स होते हैं उस पर फोल्ड कर देते हैं और फिर उसको करते हैं बॉईल, तो तब जाके बनती है सोया चाप। सो इसमें सोया काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ सोया में यू कैन ईजिली फाइंड 34 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ रियली हेल्दी। बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, जिन्हें जो जिम जाते हैं, जिन्हें प्रोटीन चाहिए होता है, वो सोया का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स और सोया चाप। सो और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। कुकिंग क्लास में लेता नहीं हूँ, मैं देता हूँ और किसी को खाना सीखना होता है तो वो मैं स्क्रैच से सिखाता हूँ। कोई बिगनर हो, कोई इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो, सो आप प्रोफेशनल शेफ के अंदर ट्रेन कर सकते हो। एंड इट्स बीन इंटरेस्टिंग, या थैंक्स मनी। रजनी सोनी बख्शी, मसाला चाप की रेसिपी। ओके, सो मसाला चाप एक्चुअली चाप बहुत सारी तरीक़ों की अब मिलने लगी है ईस्ट दिल्ली में। बेसिकली अगर आप यहाँ पे आएंगे ईस्ट दिल्ली में, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, हर स्ट्रीट पे आपको अराउंड 2-3 दुकानें मिलेंगी चाप की। सो वहाँ पे वैरायटी होती है पुदीना चाप की, लहसुनी चाप, मसाला चाप, स्टफ़ चाप, मलाई चाप, ऐसे ऐसे काफ़ी तरीके की चाप्स हैं। और मसाला चाप में बेसिकली आप इंडियन स्पाइसेस डाल सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक एंड गरम मसाला। और ये मसाला चाप को इसमें मैरिनेट कर सकते हैं हम कर्ड में, जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और देन उसको सेम आप ग्रिल पे पका सकते हैं। दैट्स मसाला चाप रेसिपी। थैंक यू ब्लॉसम, थैंक यू प्रसन्नजीत, थैंक्स नरेंद्र। सो हम चेक करते हैं, हमारी चाप इज अबाउट टू कुक। यू कैन सी हल्के हल्के ब्राउन मार्क्स आ रहे हैं उसमें, which is looking amazing। इसको हम 2 मिनट और रखेंगे जिससे कि अच्छे से ग्रेटिनेट हो जाएगी ये। थैंक्स हिरल, यू कैन फॉलो माई पेज फॉर श्योर। थैंक्स आकांक्षा। बॉयल इसको सिर्फ 5 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं। थैंक्स जिग्ना मेहता। थैंक यू इंद्रप्रीत नारंग, डू ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू कनिष्क शर्मा, थैंक यू रिंकू। मनी प्रकाश, कैन वी यूज रेडीमेड सोया चाप्स? येस, ऑब्वियसली यू कैन यूज रेडीमेड सोया चाप। मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि ये रेसिपी 20-25 मिनट्स में ख़त्म करनी थी, इसलिए मैंने रेडीमेड यूज़ किया। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो ये मैंने रेसिपी बताई है, वो यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स कामिनी, थैंक यू पिंकी भारद्वाज। दीपक चौहान, नंबर मेरे शेफ़ पारस कपूर के पेज पर है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और कोई भी केटरिंग्स हो, आपकी बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टीज हो, वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू मनी। हिरल असवानी, इज इट जस्ट इन दिल्ली? येस, केटरिंग्स मेरी ऑल ओवर दिल्ली होती हैं। एंड अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो क्रेव देसी बाय शेफ पारस कपूर जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं रात के 4 बजे तक ईस्ट दिल्ली में। थैंक्स सुनीता, थैंक यू रजनी, थैंक यू स्वाति तोमर, थैंक यू पिंकी। सो एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा जैसे ये रेडी हो जाएगी। थैंक्स स्वाति तोमर, थैंक्स नीलम। सो नीलम ओबरॉय का क्वेश्चन है, व्हिच ओवन इज द बेस्ट फॉर बेकिंग? यूजुअली डेक ओवन इज बेस्ट, या आपके पास सैलामेंडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। या आपके पास अगर OTG भी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स दे देगा, अच्छे से ग्रिल कर देता है। सो हमारा सोया चाप इज अबाउट टू ग्रिल। या मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर ग्रेटिनेट हुआ है। कम there you go,
It's looking stunning. So अब हम इसको निकाल लेंगे. और अब इसकी हम करेंगे प्रेजेंटेशन. यूट्यूब चैनल है मेरा और शेफ फारस कपूर के नाम से यूट्यूब चैनल है. आप वहाँ पे जाके मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं. कैन वी मनी प्रकाश का क्वेश्चन है, कैन वी टेक इट एज अ ब्रेकफास्ट और इवनिंग है? या श्योर. यूजुअली इवनिंग में खाते हैं सोया चाप को. आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो. इट्स हेल्दी. सो व्हाट आई विल डू इज इसको हम निकाल लेंगे नीचे से. This is looking so amazing. I think काफी लोगों के मुंह में अभी पानी आ रहा होगा. और अब इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे. इस पे हम डालेंगे जो हमने अनियंस कट किए थे. ओके, सो अनियंस को अब मैं इस चटनी में डालूंगा जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी. इसको हम मिक्स करेंगे. आकांक्षा बरनवाल की पोस्टिंग न्यू रेसिपीज एंड कम अगेन ऑन अमूल पेज. सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा अमूल को कि उन्होंने इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दी मेरे को अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए. और अगर आप सबको अच्छी लगेगी तो मैं डेफिनेटली दोबारा आऊँगा अमूल पे एक और नई रेसिपी लेके जो कि बहुत ही सिंपल होगी. आप इजीली घर पे बना सकते हो. सो हमारा चटनी और प्याज इज़ रेडी. और अब हम इसको थोड़ा सा डालेंगे ऊपर एज अ गार्निश. थोड़े से हम इसको डालेंगे साइड पे. मलाई चाप और मसाला प्याज चटनी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. अगर आप मलाई चाप बना रहे हैं तो ये चटनी और प्याज ज़रूर बनाइएगा. So dish is about to ready. थोड़े से हम साइड्स इसके क्लीन कर लेंगे जिससे फोटो बहुत अच्छी आएगी. कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको कैसी लग रही है रेसिपी और कैसी दिख रही है. आई एम रीडिंग द कमेंट सेक्शन. मीना शॉ, थैंक यू. Rati Mehrotra, do you give online classes? What are the charges? Yes, I do give online classes. आप शेफ फारस कपूर पे जाके मेरे को DM कर सकते हैं. Then I'll let you know the prices. श्रद्धा टंडन, amazing, thank you so much श्रद्धा. पिंकी भारद्वाज, चाप का रेशियो इज 1 cup सोयाबीन, 1 cup सोया ग्रैन्यूल्स एंड 3/4 cup ऑफ मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पानी. अब हम इसको मोल्ड जो है इसको निकाल लेंगे. Yeah, so this is what we wanted. और इस पे हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर की. मीनू वेग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मीनू. कौर प्रीत, ऑर्डर कहाँ करना है? ऑर्डर आप क्रेव देसी से कर सकते हो जोमेटो एंड स्विगी के थ्रू. रात को 4 बजे तक, दोपहर को 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक. और मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी. बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इजीली आप घर पे बना सकते हो. और ये हमारी मलाई चाप, ग्रेटिनेटेड अफगानी मलाई चाप बिल्कुल रेडी हो चुकी है. यस, नेहा अरोड़ा, आई हैव अ यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ शेफ फारस कपूर.
ACS Sarita Pandey, thank you Sarita. Ahil, amazing, thank you. Thank you Pooja, thank you Jigna, thank you Archie, Preeti, Rinku, thank you Manju. So recipe is ready. ग्रैटिनेटेड अफगानी मलाई चाप और आप देख सकते हैं इसमें ये जो ग्रैटिनेट हुआ है बहुत अच्छा कलर आया है। यहाँ पे चीज़ अच्छे से ग्रैटिनेट हो गई है। और ये मैंने बनाए हैं मसाला चटनी अनियन, और इसकी मैं रेसिपी एक बार रिपीट कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चाप को मैरिनेट किया है। दो चम्मच हंकर, 2 चम्मच कैशू पेस्ट, 3 चम्मच क्रीम, अमूल क्रीम, और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सॉल्ट, ग्रीन चिली, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। 5-10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो। देन उसके बाद मैंने चटनी बनाई है जिसमें कोरिएंडर है, धनिया, थोड़े से उसमें रोस्टेड क्यूमिन और अदरक और जिंजर, सॉल्ट और ग्रीन चिली, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन उसके बाद उसमें मैंने हंकर डाला है। हंकर की जगह आप नॉर्मल कट भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे कलर बहुत सुंदर आता है। और देन उसमें मैंने जब मलाई चाप रेडी हो गई उसको ग्रिल किया है। आप तंदूर या ओवन में भी बेक कर सकते हो उसको। देन उसके बाद जब वो ग्रिल हो गई इसको काट के मैंने उसमें क्रीम, बटर, सॉल्ट और चाट मसाला मिला के मिक्स कर लिया अच्छे से। सो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, तभी क्रीमी फ्लेवर आता है मलाई चाप का, और उसे ही कहते हैं मलाई। इसको मैं एक पीस निकाल के दिखाता हूँ आपको। या यू कैन सी इट्स अमेजिंग gratinated. You can look at the Amul cheese, looking so amazing. इसको मैं अकेले सारा खा जाऊंगा। एंड आप जब भी बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाना, क्योंकि हमेशा ही बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो मैं अमूल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू अमूल for this amazing opportunity. I've used Amul products like butter, Amul curd, Amul cheese and Amul cream. Amul products are the best. Amazing taste, amazing texture, easily Indian recipe में किसी के साथ भी जाता है। So आप जब भी बनाएं अमूल के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइएगा। और मेरा पेज ज़रूर लाइक कीजिए, शेफ़ फारस कपूर, और मेरा ब्रांड है क्रेव देसी बाय शेफ़ फारस कपूर। मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ एंड यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है शेफ़ फारस कपूर। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, तो आप जोमेटो, स्विगी और यमी आइडिया ऐप और फूडली से ऑर्डर कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं दोपहर को 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। मिडनाइट क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हैं। एंड सो मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ एक बार। यूट्यूब चैनल का नेम है शेफ़ फारस कपूर। सरिता पांडे, लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सरिता। सरोज कूपर, लवली, थैंक यू सो मच। राधिका, उर्वशी, मधुलिका, आहिल, अनीता, वैशाली, छोलेटी, इट्स टेम्पटिंग से, थैंक यू। लवी शर्मा, थैंक यू। और अगर आप अभी आप घर पे हैं आप सब लोग और पार्टीज हो रही होंगी, अगर आपके घर पे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, किसी का बर्थडे हो या किटी पार्टीज घर पे हो रही हैं, देन डू बुक अ शेफ एंड यू I'll come at your home and cook for you। और उसमें हम लाइक केटरिंग्स करते हैं, किटी पार्टीज होती हैं या बर्थडे पार्टी होती है या हाउस पार्टी होती है या कोई भी इवेंट होता है, पर्सनल ऑर्डर होता है, तो मिनिमम 15 जनों से लेके 80 जनों तक का खाना मैं करता हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर है, आप लिख सकते हैं 9591366097। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 9591366097। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डू लाइक माई पेज, डू फॉलो माई पेज। एंड थैंक यू अमूल, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दी है आपने। एंड आई होप आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, डिश बहुत अच्छी लगी होगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। बहुत ईजी रेसिपी है। या शेफ अमचूर भी, हाँ अमचूर आप चटनी में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू लविश, थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और ईस्ट दिल्ली में मेरा ब्रांड है क्रेव देसी बाय शेफ फारस कपूर। यू कैन इजीली ऑर्डर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। और आप सब ने देखा रेसिपी, होप आपको अच्छी लगी हो, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड डू फॉलो माई पेज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेफ फारस कपूर, एंड क्रेव देसी माई ब्रांड, एंड यूट्यूब चैनल शेफ फारस कपूर। डू book a chef if you are planning to do a party at your home. Do book me, I'll come at your home and cook for you.
And thank you so much. Thank you so much, Amol. Love you all. Bye bye.